Hey guys, have you ever wondered that when you switch on your electric heater, how does it generate heat from electricity? Or when you say to your mom that mom please press my clothes and she uses an electric iron, how does the iron work? Or how does the electric induction cooker or electric kettle work? So to answer this question, you have to understand the heating effect of electric current, and that is something which is we are going to discuss in today's lecture. So to understand heating effect of electric current, you have to recall simple law which you read in class 9, that is law of conservation of energy. According to this law, energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another. So this is something which you have to understand. When there is a current in a circuit, what happens, the electrical energy of the circuit or whatever the device generating the electrical energy, let it be a battery or it be a main supply of your home, the electrical energy somehow gets converted into thermal energy or heat. Both are form of energy, they can interconvert into each other, right? Similarly, you remember there is a fan in your home. So in fan, what happens, in fan electrical energy converts into mechanical energy and the fan rotates. Similarly, in electrical heater and all these heating appliances, the electrical energy is converted into heating energy. Okay, so now we will look into the mathematical aspect of this heating process. So let's go to the computer screen. तो देखो, जब आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो तो सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन जूल ने ही किया था। जूल वही साइंटिस्ट है जिनके नाम पर हमने एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी रखा है। तो जूल ने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट डिड ही ऑब्जर्व? दैट व्हेन यू पास अ करंट आई थ्रू अ रजिस्टर आर, whenever a current I passes through a resistor R, he observed that the heat generated H, heat generated in the resistor, इस resistor में जो heat generate हुआ H is proportional to the square of current, and H is also directly proportional to the resistance, and finally H is proportional to the time period for which the current flow through the resistor. तो जितने देर के लिए रजिस्टर से करंट पास हुआ, हीट उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स ज़्यादा देर के लिए अगर आप करंट पास करोगे तो ज़्यादा हीट जनरेट होगा। सो फाइनली ही सेड दैट एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फाइनली ये रिजल्ट उनके पास निकल कर आया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उन्होंने 1 रखा। तो जूल ने ये ऑब्जर्व किया। तो यहाँ से हमारे पास जो लॉ निकल कर आता है कि हीट generated by a resistor R if current I is passing through it is I square R T। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जूल का तो ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस था, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या हो सकता है। तो देखो, इसको समझने के लिए देखो बहुत ही सिंपल है। मान लो यहाँ पर एक चार्ज Q है जो कि पहले A पॉइंट पर था। तो जब करंट इससे पास किया तो इसका क्या मतलब है? करंट पास किया इसका मतलब चार्ज पास किया। चार्ज यहाँ से बी तक चला गया, रजिस्टर को क्रॉस किया, कितने टाइम में? टी टाइम में। तो अगर चार्ज क्यू यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में जा रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? चार्ज पास्ड बाय टाइम टेकन, बोलो यही होगी ना। तो यहाँ से तुमको क्या मिला? ये रिजल्ट मिला, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो ये रिजल्ट याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, पोटेंशियल की डिफरेंशियल क्या थी? अगर आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट? इज क्यू टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू वी। बोलो क्यू वी, वी क्या है बेसिकली? क्यू वी तो होगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस टू दिस, बोलो राइट? हाँ, ऐसा होगा ना। तो आपके पास ये वर्क डन होगा, तो क्यू वी बेसिकली क्यू इंटू वी। और ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर मेरे बच्चे। और ऊपर में ही हमने प्रूफ किया Q इज इक्वल टू आई टी। सो बेसिकली हीट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज। जितना भी वर्क इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में होगा, वो सारा का सारा वर्क एनर्जी कंजर्वेशन से हीट में ही तो कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं ना।
all the work in moving the charge from A point to B point is going to convert in form of heat or let's say light. It doesn't matter. Okay. So this heat is work done and it is equal to Q into V, और Q को आप लिख सकते हो IT, तो सिंपली VIT भी लिख सकते हो. इट्स नॉट वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम. ओके, और आप V को IR भी लिख सकते हो, तो इसीलिए यहाँ से निकल के आया हीट इज इक्वल टू VIT बोलो या फिर I²RT बोलो. V को IR सब्सटीट्यूट किया. ठीक है, इट डजेंट matter. Okay, clear? Now let's say if I ask you a very simple question that you have to plot the heat generated, you have to plot H, the heat generated across the resistors versus time. Fine. So now let's say there is a resistor R through which a constant current I is passing, right? इसके through एक constant current I pass कर रहा है. Now the heat developed across this resistor हमने देखा क्या था, वेरी सिंपल फॉर्मूला I²R T. सो करंट इज कांस्टेंट, ये गिवन है हमारे पास. रजिस्टर इज कांस्टेंट, क्योंकि एक रजिस्टर जब तुम लोगे तो उसकी वैल्यू तो फिक्स ही होगी ना, वो समय के साथ थोड़े चेंज होगी. तो रजिस्टर इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो यू कैन सी हीट इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट? So you can see H is directly proportional to time. Clear? So isn't this equation is similar to something like this? ये इक्वेशन देखो, y is equal to mx के टाइप है कि नहीं? यहाँ पे y तुम्हारा हीट है और x तुम्हारा टाइम है. These two are variable and this is constant. So if I draw the plot in such a way that y axis पे अगर मैं हीट रखा और एक्स एक्सिस पे अगर मैंने टाइम रखा, तो जब मैं ये प्लॉट बनाऊंगा तो ये प्लॉट कुछ ऐसा मुझे नज़र आएगा, ओरिजिन से पास करता हुआ. इट विल पास थ्रू 0,0, दैट इज़ द ओरिजिन. यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे हीट 0, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हीट की वैल्यू बढ़ती जाएगी. और अगर आपसे कोई ये स्लोप पूछे, theta, tan theta, that is what the slope of this curve will be nothing but I²R. I²R. तो अगर मैं आपको यहाँ पे दो ग्राफ दे दूँ, let's say this is graph 1 and graph 2, और अगर मैं बोलूँ कि हीट वर्सेस टाइम का कर्व कुछ ऐसा है दो रजिस्टर्स के लिए जिनकी वैल्यू R1 और R2 दी हुई है, and now if I ask you, can you tell me which one is greater, R1 or R2? If I know that current is same, if let's say current I is passing through both of them, then I know that tan theta is equal to I²R. So tan theta ज़्यादा, इसका क्या मतलब? R ज़्यादा. तो किसका थीटा ज़्यादा है? देखो ये थीटा है और ये θ2 है, मान लो ये θ2 ये θ1. तो यू कैन सी θ2 इज मोर देन θ1, तो tan θ2 इज मोर देन tan θ1. क्लियर? सो इसका क्या मतलब है? R2 इज मोर देन R1. तो द स्टीपर ग्राफ, द ग्राफ विच इज स्टीपर, द ग्राफ विच इज हैविंग हाइयर स्लोप will have higher value of resistance if current is same. फंडा चमका? क्लियर है सबको? So now you would have seen that whenever a current passes through a resistor, there is a heat generated in that resistor, and that heat is given by I²RT, and it's directly proportional to the time for which the current flows through that circuit element. So एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि जब भी किसी सर्किट एलिमेंट रजिस्टर से करंट पास करता है वहां पे हीट जनरेट होगा. तो इट इज फॉर श्योर कि जो भी आपके सर्किट के एलिमेंट्स हैं वो समय के साथ गर्म होंगे, ठंडा तो नहीं होगा. पर इसका क्या मतलब है? हम कोई भी मटेरियल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज बिग नो. यू कैन नॉट यूज एनी मटेरियल फॉर हीटिंग पर्पसेस. सी व्हाट इज द पॉइंट हियर? जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा मटेरियल का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा. लेट्स से आई वांट टू मेक आयरन, and for pressing clothes I need a temperature of let's say 1000 degree.
and I made it using, let's say, lead. Lead का melting point होता है बहुत ही कम, around 500, 300. So the moment temperature is just 500 or 300 degrees Celsius, lead will melt. But we need for pressing temperature close to 1000 degree. Let's say it's an imaginary example. 1000 degree पे तो तुम्हारा कपड़ा भी नहीं टिकेगा. So that's an imaginary example. So for heating purposes, you have to be very selective. You cannot use whatever you want. ऐसा नहीं है कि आपने जो मन किया वो यूज कर लिया. देखो सारे मटेरियल गर्म होंगे. It's a universal point. But when we want to use it for practical purpose, we have to be very selective. We have to narrow down our choices. We have to use only that particular material जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करे, ड्यूरेबल हो और इकोनॉमिक भी हो, क्योंकि हमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखना है. अब हम प्लैटिनम का थोड़े बना लेंगे. हाँ, प्लैटिनम इतना महंगा मेटल है, प्लैटिनम का बनाओगे क्या? आयरन या बल्ब का फिलामेंट. तो अभी तो आजकल तो सबके घर में एलईडी बल्ब आता है. पुराने जमाने में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, देयर वाज अ बल्ब जिसमें एक वायर होता था बीच में और वो ऑरेंज लाइट देती थी. पुराने जमाने का बल्ब. सो जो वायर था दैट वाज मेड अप ऑफ टंगस्टन. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, अराउंड 2000 डिग्रीज के ऊपर होता है. तो टंगस्टन मेटल हम वहां पे यूज करते थे, क्योंकि अगर आपने वहां पे कोई और मेटल यूज किया, लेट्स से आयरन यूज कर लिया या कॉपर यूज किया, तो वो उतना हाई टेम्परेचर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो उसके पहले ही मेल्ट कर जाएगा ना. द मोमेंट मेटल रीचेज इट मेल्टिंग पॉइंट, इट विल मेल्ट, एंड द मोमेंट इट मेल्ट्स, it's of no use to us, right? So we have to use a material whose melting point is high. That is why in most of the heating devices you will see either tungsten or even better than tungsten, use a alloy. Which alloy? So the typical alloy which is mostly used in this iron heater or coil, electric coil based device जहाँ पे coil से heating होती है, is nichrome. It's an alloy of nickel and chromium mainly. So nichrome alloy का हम use करते हैं. Nichrome has very high melting point. Okay, so this is something which you have to understand, that you cannot use any material. Yeah, all the materials will become hot in due time when current passes through them, but in heating devices mainly nichrome or tungsten is used. And where do we use such devices? So the old school bulbs, means old bulbs. Nowadays no one uses the heating effect in bulbs because they are all LED. We use transition like semiconductor materials in bulbs, so LED आ चुका है अब. बट द पुराने जमाने के जो बल्ब थे वहां पे यूज होता था इसका. देन योर इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, सिमिलरली वो हीटर जिसमें कॉइल वाला हीटर होता था ना जो ऑरेंज ग्लो करता है. दीज आर ऑल डिवाइसेस वेयर वी यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर? सो थैंक यू ऑल. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.